Hello students, good morning to all. Today we will study the ocean thermal energy conversion, that is the OTEC. In our last lecture we have studied the biomass and biogas interconversion. This is the second part of the unit 5th ocean thermal energy conversion, OTEC. So let's start the topic. What is OTEC? OTEC is the ocean thermal energy conversion that uses the temperature difference between the cooler deep and the warmer shallow or surface ocean water to run a heat engine and produce useful work, usually in the form of electricity. Mainly we generate the electricity from the temperature difference of the water of the ocean at the surface and the deep. OTC is a base load electricity generation system, that is, it generates the electricity up to 24 hours in a day and all the years long. So it is a base load electricity generation system. However, the temperature differential is small and this impact the economic feasibility of ocean thermal energy for electricity generation. That means the temperature difference between the surface and the bottom of the ocean is very small, and due to which it is not the economic feasible and requires high amount to set up the power plant. Availability of OTEC. The ocean covers more than 70% of Earth's surface and capture about 80% of sun's radiation incident on the Earth, making them the world's largest solar collector and energy storage system. Means ocean is the largest solar collector and energy storage system as it covers the 70% area of the Earth. As we know that there are 30% of the land area and the 70% of the water surface over the Earth. So maximum energy can be collected, sun radiation can be collected on the surface of the ocean. It captures the 80% of sun radiation. It stores an annual energy flux of 0.851018 kilowatt hour. Clear? Utilizing just a small portion of this energy can cover the global energy need. If we utilize this energy, then we can cover the global energy need. The energy source of OTEC is free. It is freely available. There is no charge or no cost is required to obtain this energy, and abundantly available means in large amount it is available and is continually being replenished as long as the sun shines and the natural ocean currents exist. Means till the sun shine and the natural ocean current exists, it will generate the electricity from the. Next point, the solar radiation absorbed in the surface layer of the ocean water in the equatorial zone heat the water up to 27 to 300 degrees Celsius depending on the season. Means in the equatorial zone the temperature of the water heats up to the 27 to 300 degrees Celsius by the solar radiation. That is the huge amount of temperature. The surface temperature varies both with latitude and the season. Means latitude के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है टेम्परेचर और सीजन के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है.
Come to the next point, types of OTC system. There are mainly two types of OTC system. One is the open or closed cycle of OTC system, and second is the closed or Anderson cycle of the OTC system. First we will study the open or closed cycle of OTC system. Open cycle OTC use warm surface water directly to make electricity. मीन्स जो वार्म सरफेस वाटर है उसका डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. द वार्म सी वाटर इज़ फ्लैश्ड एवेपोरेटेड इनटू ए लो प्रेशर कंटेनर विच कॉजेज इट टू बॉइल्स. एक लो प्रेशर कंटेनर होता है जो वार्म वाटर को ईजीली कन्वर्ट कर देता है इनटू द स्टीम. In some scheme, the expanding steam drive a low pressure turbine attached to the electrical generator. जो स्टीम जनरेट हो रही है लो प्रेशर कंटेनर में वो हम यूज़ करते हैं अप्लाई करते हैं टू रोटेट द टर्बाइन एंड द टर्बाइन इज़ अटैच्ड टू द इलेक्ट्रिकल जनरेटर दैट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. द स्टीम विच हैज़ लेफ्ट its salt and other contaminants in the low pressure container is pure fresh water. देखिए इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि एक तो स्टीम जो जनरेट हो रही है वो टरबाइन को रोटेट कर रही है, और सेकंड बेनिफिट इज़ दैट जो स्टीम जनरेट होकर के अगर हम उसको कलेक्ट कर ले एक जगह तो वो क्या है एज ए फ्रेश वाटर या प्योर वाटर भी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए. इट इज़ कंडेंस्ड इनटू ए लिक्विड by exposure to cold temperature from deep ocean water. मीन्स डीप ओशियन वाटर की हेल्प से हम जो स्टीम होता है उसको हम कंडेंस करते हैं लिक्विड फॉर्म में. दिस मेथड प्रोड्यूस डीसैलिनाइज्ड फ्रेश वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. जैसा कि अभी बताया है कि जो स्टीम कंडेंस होती है तो उससे क्या होता है डीसैलिनाइज्ड फ्रेश वाटर यहाँ पर जनरेट होता है suitable for drinking water, irrigation or aquaculture. A heat exchanger is not required and direct contact with between the exhaust steam and cold water spray makes a heat exchanger. Means there is no need of heat exchanger. In such scheme, the generated steam is at very low pressure. This requires a large volume of steam. Means जो भी इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो क्या होता है लो प्रेशर पर होता है. मीन्स यहाँ पर लार्ज वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट रहती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टीम की रिक्वायरमेंट रहती है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ OTC सिस्टम ओपन साइकिल, ओपन और क्लॉज्ड साइकिल OTC सिस्टम. देखिए यहाँ से वार्म वाटर यहाँ पर इनलेट होता है जो कि एवेपोरेटर होता है. एवेपोरेटर विल जनरेट द स्टीम एंड दैट स्टीम इज़ फेड टू द स्टीम टर्बाइन एंड स्टीम टर्बाइन विल रोटेट. एज द स्टीम टर्बाइन रोटेट द जनरेटर विल ऑल्सो रोटेट एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड थ्रू द जनरेटर. द स्टीम इज़ पास टू द कंडेंसर एंड दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म. Clear? So this is the all about open or closed cycle of OTC system. The next part is next type is the closed or Anderson cycle of OTC system. In a closed cycle system use fluid with a low boiling point. देखिए ओपन साइकिल में हम क्या करते हैं स्टीम जनरेट करते हैं फ्रॉम द हाई टेम्परेचर वाटर एंड दैट स्टीम इज़ यूज टू रोटेट द टर्बाइन. बट इन क्लोज्ड और एंडरसन साइकिल ए फ्लूइड इज़ यूज्ड विद लो बॉइलिंग पॉइंट. एक फ्लूइड यूज़ करते हैं हम जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है सच एज अमोनिया, फ्रेन 12 और ब्यूटेन टू पावर ए टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स स्टीम की जगह हम इस लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूइड का यूज़ करते हैं यहाँ पर. वार्म वाटर सरफेस सी वाटर इज़ पम्प्ड थ्रू ए हीट एक्सचेंजर
which act as boiler to vaporize the fluid at high pressure। देखिए यहाँ पर हमें हीट एक्सचेंजर की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स जो वार्म वाटर सरफेस है सी वाटर का, उसको हम पंप करते हैं थ्रू द हीट एक्सचेंजर, और उस हीट एक्सचेंजर से क्या होता है, जो हीट होती है वार्म वाटर की, उस हीट को हम एक्सचेंज कर देते हैं टू द लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूइड, और वो लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूइड क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है एट हाई प्रेशर। क्लियर। द एक्सपेंडिंग वेपर टर्न्स द टर्बो जनरेटर, कोल्ड वाटर पम्प्ड थ्रू ए सेकेंड हीट एक्सचेंजर कंडेंस द वेपर इनटू ए लिक्विड विच इज़ देन रिसाइकिल्ड थ्रू द सिस्टम। देखिए जो वेपर जनरेट हुई है लो बॉइलिंग पॉइंट फ्लूइड से, वो क्या करेगा, टर्बो जनरेट मीन्स टरबाइन को और जनरेटर को रोटेट कराएगा। उसके बाद उसको हम पास करेंगे सेकंड हीट जनरेटर। जो सेकंड हीट जनरेटर है वो क्या करेगा, उसको वापस से फिर कंडेंस कर देगा, उस स्टीम को क्या करेगा, कंडेंस कर देगा, और फिर ये प्रोसेस क्या है, रिसाइकिल हो जाएगा थ्रू द सिस्टम। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सच प्लांट इज़ वेरी लो इन द रेंज ऑफ 2 to 3% ओनली। जो एफिशिएंसी होती है वो 2 से 3% ही होती है। ठीक है, इसलिए जितना एनर्जी जो ओशियन है स्टोर करता है, कैप्चर करता है, उसको हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते। अगर हम उसको फुल्ली यूटिलाइज करें तो बहुत ज़्यादा हम उसकी एनर्जी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3% ही हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एंडरसन साइकिल। यहाँ से हम वार्म वाटर इनलेट करते हैं एट द एवोपरेटर, और वार्म वाटर क्या करता है, जो इसको हीट एक्सचेंजर की तरह ऑपरेट करता है। यहाँ पर वार्म वाटर को हम हीट एक्सचेंजर या एवोपरेटर में एंटर करा देते हैं, और यहाँ से देखिए ये सरफेस वाटर डिस्चार्ज, ये वार्म वाटर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है, इधर से इनलेट हुआ और ये हीट एक्सचेंजर से यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। मीन्स इसको हम यहाँ पर स्टीम टरबाइन में इनलेट नहीं कराते। यहाँ जो एवोपरेटर है ये क्या करेगा, लिक्विड फ्लूइड को वेपोराइज फ्लूइड में कन्वर्ट करेगा, एंड दैट वेपोराइज फ्लूइड इज़ यूज टू रोटेट द स्टीम टरबाइन, एंड दिस स्टीम टरबाइन रोटेट द जनरेटर एंड जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। फिर यही फ्लूइड क्या होता है, लो प्रेशर पर इसको हम, लो प्रेशर वेपर यहाँ से ऑब्टेन होती है, जिसको हम कंडेंसर में वापस से हम इसको फिट कर देते हैं, और ये क्या करता है, यहाँ से एक सेकंड हीट एक्सचेंजर की तरह ऑपरेट कर रहा है। ये कंडेंसर क्या है, एक सेकंड हीट एक्सचेंजर की तरह ऑपरेट कर रहा है। यहाँ से जो कोल्ड डीप वाटर है फ्रॉम द ओशियन, इसको हम पास कराते हैं फ्रॉम द कंडेंसर, जो कि फ्लूइड होता है लो प्रेशर वेपर, जिसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द लिक्विड ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, सो दिस इज़ द कंप्लीट साइकिल ऑफ closed or Anderson cycle OTC system. Now what are the advantages of OTC system? These are the advantages of OTC system. That is, power developed is almost constant and independent of weather. Weather पर dependent नहीं है, लगभग constant रहती है। There is small variation in the power output from season to season. Small changes are required to use as conventional power plant. Useful to produce desalinized water and nutrients. Means desalinized water भी हम यहाँ से produce कर सकते हैं, as well as the electricity production. What are the disadvantages? High capital cost means plant को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा cost की requirement होगी। लो एफिशिएंसी, जैसे कि बताया 2 से 3% ही इसकी एफिशिएंसी रहती है, 2 to 3%। एक्सपेंसिव वर्किंग फ्लूइड इन केस ऑफ क्लोज साइकिल, मीन्स अगर हम एंडरसन साइकिल का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो फ्लूइड हम यूज़ करेंगे उसकी वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। हाई जनरेशन कॉस्ट ऑफ पावर पर किलोवाट आवर, मीन्स जो पावर जनरेट होती है उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई पड़ती है। क्लियर। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ OTC. So this was all about the ocean thermal energy conversion OTC. So next lecture में हम स्टडी करेंगे the third part of the unit 5th.
सो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।